जी मैम। जी बेटा शुरू करें। मैम हिस्ट्री लेनी है सबसे पहले। जी जी, जैसे जैसे हमारा एक नॉर्मल पैटर्न होता है कि आप केस प्रेजेंट करते हो, मतलब जैसे हमारा एक एग्जाम का स्टाइल है अभी एक्सटेंडेड टॉक्स का, जी इसमें मैम। आपने एक ब्रीफ सा सिनेरियो देना है और उसके बाद फिर आपने जो बाकी उसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटेंडेड टॉक्स, वो आपने फिर हमें बताने होंगे। मैम मैंने तो टॉपिक तैयार किया है, मैंने पहले आपकी अच्छा, कोई टॉपिक क्लास तैयार अटेंड किया, नहीं की। यानी आपने कोई उस तरह से नहीं किया। मतलब ओके, मैम मैंने हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन तैयार की है, लेकिन मुझे अच्छा लगा था सिनेरियो आप देंगी मैम। चलो ठीक है, फिर सिनेरियो मैं दे देती हूँ। जी मैम। A patient 65 years of age, जी मैम। postmenopausal for last 12 years. ठीक है, she is para 5 and now for the last 2 months she is complaining of severe itching vulva. जी On मैम। examination, on examination there is a whitish lesion on both sides of the vulva in the lower one third of the of labia minora. जी मैम। ठीक है, ये आपका एक ओवरऑल सिनेरियो है। सही है मैम। जी, पहले मैम मैं उर्दू की हिस्ट्री से स्टार्ट करूँ या इंग्लिश में ही बता दूं मैम? आप इसको जैसे आपने एग्जाम में करना होता है आप उसी तरह से करोगे। जी मैम। ठीक है, अस्सलाम क्योंकि वालेकुम। आपके सामने देखो, आपके सामने रोल प्लेयर नहीं बैठा हुआ। जी तो मैम। जब रोल प्लेयर ना बैठा हुआ हो तो फिर आपने उसको एग्जामिनर को तो आप इंग्लिश में ही बता रहे होते हो। जी मैम इंग्लिश में ही ये बता वाला रही हूँ जी। पेशेंट है, इसमें मैंने हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे ये चीजें पूछनी है, इन्वेस्टिगेशन में ये पूछना है, मेरी काउंसलिंग इस तरह से होगी, डायग्नोसिस मेरा प्रोविजनल डायग्नोसिस ये बनता है, और इस तरह से आपने केस को फिर आगे लेके चलना होगा। जी मैम। Assalamu alaikum. I am Dr. Aisha Ismail. I have read the instructions and I am ready for structured discussion. हाँ, First of all, I'll ask about pruritus from the patient. I'll take detailed history of pain, any warts, any swelling or mass at vulva, any history of bleeding, any foul smelling discharge, any weight loss or loss of appetite. I'll ask about workup done till now, any pap smear, gynecological history, obstetrical history, smoking history, family history of any carcinomas, personal history and socio-economic history. I'll also ask past medical, surgical history and drug allergy history. Then I'll move to the examination of the patient. In general physical examination, I'll see the general look of the patient, BMI, vitals, breast examination, CNS, CVS respiratory examination. I'll do the palpation of lymph nodes, especially inguinal lymph nodes in this case. I'll do local examination, any visible mass or ulcer swelling, and then I'll do the detailed examination of the ulcer found on the labia minora. I'll check its base, whether it is having any discharge or bleeding, or its margins, and then its extent, and then I will move to investigations. In baseline investigations, नो, I will अच्छा चलो आप कंप्लीट कर लो पहले। in baseline investigations, I will have complete blood count in the date, including hemoglobin in gram per deciliter, platelets and TLC count in cubic millimeter, our urinary examination, viral serology, and then random blood sugar level. I'll also have in specific investigations, I will have RFTs, LFTs, ECG, chest X-ray, cervical cytology or colposcopy, as there is association with HPV also. I would like to go for investigations like MRI to see involvement of surrounding structures like bladder and rectum. Then my plan is to proceed for EUA, staging and biopsy, ma'am. Further management will depend on the stage of received on the biopsy, ma'am. क्या हम बीच में डिस्कस कर लें या आखिर में डिस्कस करें? मैम जैसे आपको ठीक लगे। जी, एक्सक्यूज मी मैम, इसमें पहले मैम हमें अभी डिस्कस करते जाएं। सारी इन्वेस्टिगेशन इसमें करनी चाहिए। कुछ चीजें और हैं जो डिस्कस होने वाली हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इसको हम इनको केस कंप्लीट करने दें या हम बाद में डिस्कस कर लें। मैडम साथ 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 करवा दें। डॉक्टर साथ साथ डिस्कस करें। हाँ, मेरा भी वैसे यही ख्याल होता है कि साथ साथ डिस्कस करें तो चीजें फिर स्किप नहीं होती, क्योंकि आपने फ्रेश सुना होता है, इसलिए चीजें फिर डिस्कस कर सकते हैं। जी मैम एक्सक्यूज मी मैम, हिस्ट्री जो इन्होंने दी, आपके ख्याल में ये सफिशिएंट हिस्ट्री थी? नो मैम। हाँ,
What else need to be asked from the patient? History में और क्या चीजें हैं जो आपको पूछने की जरूरत थी? Madam, she is starting from Assalamualaikum, madam, everybody. Madam, she has to start from the itching. So how long she is having a itching? And this itching associated symptom, she did not ask it. We have to ask it. She has to have a pain, any बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. मैम आवाज नहीं आ रही है इनकी. हाँ मुझे भी आवाज नहीं आ रही. तो आवाज जरा प्लीज आप अपनी जरा करेक्ट कर लें. मैम इनको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए था. एक तो बायोडेटा वाला भी चीज मिसिंग थी, फिर पोस्ट मेनोपॉजल है उसकी, फिर ब्लीडिंग एपिसोड, सिंस हाउ लॉन्ग शी इज पोस्ट मेनोपॉजल, फिर पेन और ये सब जो सारे सिम्टम्स थे इनको थोड़ा सा इलैबोरेट करके ये पूछती. ये डेफिनेटली पूछने की जरूरत है, इसलिए कि देखो अब जो वाइटिश लेजन जो मैंने बताई हैं, क्या ये जरूरी है कि ये मैलिग्नेंसी ही हो? दो वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ पल्वल सीए, लेकिन इसमें जो एक इनिशियल स्टेज है, हम अपना माइक जरा प्लीज जिनका भी ऑन है, तो इसमें हमने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ लेजन को देख के ही तो नहीं हमने कह देना कि ये है मैलिग्नेंसी है. तो इसमें तो हमने स्टेप टू स्टेप चलना है. स्टेप टू स्टेप चलने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा पेशेंट जो वल्वल लीजन के साथ आता है जिसमें सिर्फ अभी वाइटिश पैच है, आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मैलिग्नेंसी की लाइन पे इंटेरोगेट नहीं करते, इन्वेस्टिगेट नहीं करते. कुछ चीजें आप उसके डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद भी छोड़ देते हैं. तो इसमें बेसिकली हिस्ट्री वाज इनकम्प्लीट, दैट वाज टू शॉर्ट टू एवेलुएट फ्यू थिंग्स, या उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं थे, उसमें पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस के बारे में कुछ नहीं था, उसमें सिम्टम्स स्पेसिफिक टू दैट लीजन नहीं था. मैंने तो सिर्फ इचिंग का बताया. तो इचिंग के अलावा और क्या चीजें हैं जो इस पेशेंट में पूछने वाली थी, वो सब की सब उसमें जरूरत है पूछने की. तो आयशा ये दिस वाज एन इनकम्प्लीट हिस्ट्री. इसमें आपने बहुत सारी और चीजें जैसे हमने अभी मेंशन की है वो सब पूछने की जरूरत है. सही है मैम. As far as local examination is concerned, इसमें हम और क्या हमने देखना था? Anyone else? क्योंकि आयशा ने तो हमें बता दिया, लेकिन और जो हमारे ऑडियंस हैं उनमें उनके ख्याल में और क्या चीजें थी जो एग्जामिनेशन पे हमें देखनी चाहिए? The size of the mass, any mass is present or any ulcer, the size, location of the mass, and any lymph nodes involved, any discharge, any bleeding from that mass or ulcer, and involvement of the adjacent organs. मैम इसमें वल्वल आर्किटेक्चर पे बात करनी चाहिए. मैम असीटो वाइट चेंजेस, जैसे वाइट एरिया है ना, तो हमें बेटा आप दो तीन लोग मिलकर जब बोलते हो तो किसी की भी आवाज समझ नहीं आती. हाँ जी, अब बताइए. मैम वल्वल एनाटॉमी पे बात करनी चाहिए थी ना, आर्किटेक्चर, फिगर ऑफ 8 जैसे वो स्क्लेरोसिस. सारा तो लोकल एग्जामिनेशन तो करना ही करना है, लेकिन क्या हम सिर्फ लोकल एग्जामिनेशन से शुरू करके लोकल एग्जामिनेशन पे ही एंड करेंगे? No, madam, we have इसमें तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी है. देखो एक तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, जिसमें उन्होंने और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे इन्होंने कोई चीज मिस की? मैम माउथ लीजन्स, मैडम ओरल म्यूकोजा एंड एक्जिला. वो क्यों? ओरल म्यूकोजा के लिए लाइकन प्लैनस. अच्छा ठीक है. और देखो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में सब चीजें आ जाती हैं, आप उसको स्किप नहीं कर सकते. जनरल एंड सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ये अब अगर एक वल्वल लीजन दी हुई है तो इसका क्या मतलब ये है कि सिर्फ इसमें वल्वा का ही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं हो सकता? कोई भी और चीज हो सकती है, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ वल्वल डिस्प्लेजियास उसका मैलिग्नेंसी के साथ एसोसिएशन एक खास परसेंटेज की हद तक है. अगर ये मैलिग्नेंसी है तो फिर उसमें हमने बाकी सिस्टम एग्जामिनेशन को स्किप नहीं कर सकते, नॉट इवन इन अ पेशेंट हु इज नॉट हैविंग एनी मैलिग्नेंट प्रॉब्लम. हम ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और सिस्टेमिक एग्जामिनेशन सारे पेशेंट्स में करते हैं. पेशेंट की हमने कोमॉर्बिडिटी भी पूछनी है. इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने पेशेंट की वो देखनी होती हैं.
बिकॉज अगर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे जाओ तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वल्वल लीजन के अलावा और भी कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाते हैं। तो आयशा की तरफ हम वापस जाते हैं कि इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन क्या होगा? Ma'am, lichen sclerosis can be और there, and there can be vulval CA, ma'am. और क्या होगा? lipoma, dermatitis, Paget's disease of the vulva and और dermatitis, lipoma, Ma'am, और atopic dermatitis. vulval tuberculosis. और क्या हो सकता है? देखो इसमें सारी डर्मेटोलॉजिकल जो हैं वो सारी कंडीशंस आ जाएंगी, जीवन इसमें इवन एक्जिमा वगैरह, सोराइसिस वगैरह, ये सारी चीजें हैं जो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस में ये आ जाती हैं। लेकिन अगर हम वल्वल डिस्प्लेजिया या लाइकन प्लेनस वगैरह की अगर हम उसमें मजीद उसमें कॉजेस में जाएं तो ये इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ये बाज़ दफ़ा एलर्जिक रिएक्शंस का भी हिस्सा हो सकते हैं, ये बाज़ दफ़ा हेपेटाइटिस सी का भी हिस्सा हो सकते हैं, ये बाज़ दफ़ा रिएक्शन टू हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन भी हो सकते हैं, एनसेड्स के बाद भी ये हो सकते हैं, इवन आफ्टर द फ्लू वैक्सीन। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने इसके सिस्टमिक एग्जामिनेशन पे देखनी है और हिस्ट्री पे भी पूछनी है। इफ वी आर कंसिडरिंग इट टू बी अ वल्वल डिस्प्लेसिया यानी लाइकन स्क्लेरोसिस या प्लेनस, क्या उसकी नेकेड आई अपीयरेंस हमें किसी हद तक बताएगी कि ये स्क्लेरोसिस है, ये प्लेनस है, और बाकी चीजें फिर हम कंफर्म करते हैं। अव्वल तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बायोप्सी पे जाना है या नहीं जाना, ये हमें आयशा बताएंगी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन करेंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन पे देखो बेस लाइन को हम टच नहीं कर रहे, लेकिन जी, आपने शुरू में ही अपार्ट फ्रॉम द बेस लाइन कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन भी हमें बता दी, जिसमें RFTs, LFTs हैं, कोल्पोस्कोपी है, HPV स्क्रीनिंग है, MRI है, EUA बायोप्सी है। अब इनमें से क्या चीजें हैं जो एज ऑन द फर्स्ट हैंड आपको कराने की जरूरत है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बाद में कराएंगे? मैम जी आयशा। मेरे ख्याल में RFTs, LFTs तो होने चाहिए मैम, ECG और चेस्ट एक्सरे भी होना चाहिए, फिर इंसिनल बायोप्सी हो जानी चाहिए मैम। स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैम पहले हिस्ट्री बायोप्सी को कैसे जस्टिफाई करोगे? anesthesia के दौरान क्या चीज? एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया। एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया का ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होगा? पेशेंट हमारे पास आता है वल्वल लीजन के साथ, वाइटिश प्लेक है ऑन लेबिया माइनोरा, तो क्या हम उसको फौरन ये कहेंगे कि एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया? वो क्या चीज है जो आप वैसे एग्जामिन नहीं कर सकते और अंडर एनेस्थीसिया आप एग्जामिन करोगे? मैम पहले हिस्ट्री पूछेंगे कि ट्रीटमेंट फेल हो गई है, अगर 3 मंथ की इचिंग की ट्रीटमेंट फेल है तो बायोप्सी करेंगे। पहले इसकी हिस्ट्री पूछोगे कि कोई ट्रीटमेंट उसने अभी तक ली या ना ली, क्योंकि देखो इसमें जो वल्वल डिस्प्लेसियास भी होते हैं कि 100% मैलिग्नेंसी नहीं होते, इसमें बहुत सारी और कॉजेज भी होती हैं। हाउएवर प्रोग्रेशन टू इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया या फिर CA में कन्वर्ट होने के चांसेस किसी हद तक हैं, बट नॉट इन 100% ऑफ द केसेस। तो इसलिए ये रेयरली प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है जो प्रोग्रेस कर सकती है टूवर्ड्स CA, लेकिन इसमें ये कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बायोप्सी लें, ये आपको कुछ कंडीशंस में आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। सपोज ये पेशेंट आपके पास आ रही है रेगुलरली या कहीं और दिखा रही है और इसने सारी ट्रीटमेंट वो ले ली जो हम अमूमन इस तरह के केसेस में इनिशियली देते हैं, जिसमें स्टीरॉइड्स हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, या अगर कोई ऐसा एलर्जन है तो उसको वो भी आपको हिस्ट्री में पूछना पड़ेगा कि कोई ऐसे स्पेसिफिक डिटर्जेंट तो नहीं यूज कर रही या कुछ और ऐसी चीजें जो उसके इस्तेमाल में अभी हों। ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री में पूछनी चाहिए थी, जिसमें कॉजेज जरूरी एक बहुत जरूरी चीज होती है। तो अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं ली तो फर्स्ट ट्राई द ट्रीटमेंट,
at minimum for 2 to 3 weeks. कोई रिलीफ नहीं है सिम्टम के, then proceed for the other things. लेकिन अगर वो ऑलरेडी हर तरह की मेडिसिन ट्राई कर चुकी है, वो कहती है कि मैंने ये सब चीजें ट्राई की, मुझे अभी तक फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऑन द फर्स्ट हैंड यू नीड टू टेक बायोप्सी। तो इसलिए फिर बायोप्सी की बात आप उस वक्त करोगे। अब दूसरा मेरा सवाल ये है कि इसमें आउट ऑफ ऑल द थिंग्स विच यू मेंशन्ड, जिसमें जो मैंने लिखा हुआ है RFTs, LFTs, कोल्पोस्कोपी, HPV, MRI, EUA एंड बायोप्सी, इनमें से बायोप्सी और EUA की हद तक ठीक है। सपोज एक ऐसा पेशेंट है जिसने ट्रीटमेंट पहले ली और अब आपने बायोप्सी का डिसाइड कर लिया और वो आपने ले ली, तो उसमें कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद आप कराओगे? नॉट राइट नाउ, कोल्पोस्कोपी मैम। ये भी करवाओगे? मैम वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या है टेक्निक जो यूज होती है इसके ऊपर? नहीं, वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स होते हैं, इम्यून जो बेसिकली जो के इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं लोकली, तो इसलिए उसमें रिग्रेशन होने के चांसेस होते हैं ऑलमोस्ट इन 60 to 70% ऑफ द केसेस। ये इम्यून मॉड्यूलेटर्स होते हैं और इम्यून मॉड्यूलेटर्स का रोल जो है वो आ जाता है, बहुत सारी मैलिग्नेंसीज में आ जाता है, ठीक है, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें ओवेरियन CA में भी आ जाता है, ब्रेस्ट में भी आ जाता है, ब्रेस्ट में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। इम्यून मॉड्यूलेटर इज वन ऑफ द थिंग्स, और बाकी जो हार्मोन सेंसिटिव होते हैं उनमें और भी हम चीजें यूज करते हैं, और इसमें भी इम्यून मॉड्यूलेटर्स का रोल आ जाता है, इसमें भी। तो वो वाली और चीजें हैं, उसको हम बाद में अभी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या MRI ऑन द फर्स्ट हैंड करवाओगे? नो मैम, बायोप्सी पे अगर मैलिग्नेंट लीजन आएगा फिर बायोप्सी की रिपोर्ट के मैलिग्नेंट बाद। लीजन की तो फर्दर इवैल्यूएशन इसलिए इसको जब आप इन्वेस्टिगेशन बताते हैं तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन बतानी होती है कि इसमें आप ऑन द फर्स्ट हैंड एज अ फर्स्ट लाइन चॉइस जो आप क्या इसमें ऑप्शंस आपकी होंगी इन्वेस्टिगेशन की, फिर आपकी क्या लाइन ऑफ मैनेजमेंट होगी, और बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद फिर आपने कैसे कैसे प्रोसीड करना होगा, ठीक है। तो बायोप्सी भी अगर पेशेंट ऑलरेडी ट्रीटमेंट लेके फेल ट्रीटमेंट है तो उसमें अभी करवा लो। अगर उसने कभी ट्रीटमेंट ट्राई की ही नहीं हुई, क्योंकि वो 2 महीने की उसकी हिस्ट्री है जैसा मैंने आपको बताया था, तो हो सकता है उसने ली हो ट्रीटमेंट, और ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ वेट कर रही हो और उसने ट्रीटमेंट ना ली हो। तो इसलिए ये चीज हिस्ट्री में आपने जरूर पूछनी है। तो सपोज हम इसकी बायोप्सी अब करने जा रहे हैं, हाउ यू विल प्रोसीड फॉर द बायोप्सी? क्योंकि ये देखो ये इन्वेस्टिगेशन में ही आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आपने उसकी बायोप्सी का डिसाइड कर लिया है, तो बायोप्सी से पहले आप उसका काउंसलिंग का सेशन आएगा, ठीक है। जब आपसे ये सवाल किया कि हाउ यू विल टेक बायोप्सी, तो उसमें आपने पहले पूरा काउंसलिंग सेशन करना है मरीज के साथ। काउंसलिंग में आप क्या क्या चीजें बताओगे आयशा? Ma'am, in counseling, I will first of all I'll tell her about the diagnosis and risk factor. I will tell her about the possible diagnosis and the risk factors in my patient. I will also involve MDT, multidisciplinary team involvement, including oncologist, radiologist, and hematologist. बायोप्सी लेने के लिए भी? Ma'am, I will. बायोप्सी लेने के लिए भी आप MDT को इन्वॉल्व करोगे? No, ma'am. After biopsy, I will involve the MDT, ma'am. तो अभी तो बायोप्सी बेटा आपने नहीं ली, उससे पहले हम काउंसलिंग कर रहे हैं उसकी। जी मैम। मैडम, बायोप्सी से पहले तो काउंसलिंग में हम जस्ट पेशेंट की ये काउंसलिंग करेंगे ना कि आई एम गोइंग टू डू द बायोप्सी एंड दीज आर द पॉसिबल डायग्नोसिस, एंड अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस फिर फर्दर अगर फॉर एग्जांपल ये मैलिग्नेंट लीजन आता है तो आई बेसिकली काउंसलिंग आपकी जो शुरू होती है वो ये होती है कि आपका प्रोबेबल डायग्नोसिस इस केस में क्या बन रहा है। आप पेशेंट को बताओगे कि ये रीजंस होती हैं, कुछ रीजंस के हिसाब से हमने आपको पहले से ट्रीटमेंट दे दी, और अब चूंकि ट्रीटमेंट से फर्क नहीं पड़ा, वी आर प्लानिंग फॉर हर for to take biopsy from the affected area to sort out the reason for this, and the most important reason to be excluded will be the malignancy or pre-malignant condition. Yes, जिसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है और उसको ट्रीट करना भी बहुत जरूरी है। तो ये चीज आपने उसको बतानी है। अब इसमें जब काउंसलिंग आप कर रहे होते हो तो उसमें कुछ फैक्ट्स आपने बताने होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स।
कि कितने परसेंट इसमें जो चीजें आप रूल आउट करोगे वो आपने एक प्री मेलिग्नेंट कंडीशन बतानी है। प्री मेलिग्नेंट कंडीशन इन केसेस में कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो होने के चांसेस हैं जिसकी वजह से आप बायोप्सी करना चाह रहे हो, एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट, व्हाट कैन बी द बेसिकली द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दैट प्रोसीजर, चाहे वो माइनर भी क्यों ना हो, and what anesthesia you will use, what will be the consequences once the biopsy report is achieved, and how your management plan जो है वो उसके हिसाब से, अगर ये biopsy report आई तो ये होगा, ये biopsy report आई तो ये होगा। Basically ये 2-step counseling होगी। 1-step counseling वो है जो आपने बिल्कुल initial stage पे की, after completing your history examination and investigation and before proceeding for the biopsy, ये आपकी काउंसलिंग होगी। दूसरी काउंसलिंग सेशन होगा जो बायोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद है, वंस द डायग्नोसिस हैज बीन असर्टेन कंफर्म्ड, तो उसमें जो सेकंड काउंसलिंग सेशन है वो उस वक्त होगा। तो उस वक्त की काउंसलिंग जो है वो फिर उसकी स्टेज बाद में आएगी। अब हमने पेशेंट को काउंसलिंग कर दिया, उसके पार्टनर को भी काउंसलिंग कर दी, उसमें सारे रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, प्रोसीजर ऑफ टेकिंग बायोप्सी बता दिया। अब आपका जो एडिक्वेट मेथड है ऑफ टेकिंग बायोप्सी, व्हाट विल बी इट? Ma'am, I will take incisional biopsy or wedge biopsy, and I will include the area of epithelium where there is a transition of normal to abnormal tissue. And what And is that ma'am- area? जनरल टर्म्स में वो एरिया कौन सा होता है? Healthy area, madam. यानी जो मार्जिन्स होते हैं, जी देखो जो मार्जिन होता है ना, सपोज एक लीजन है, वाइटिश लीजन है या कोई अल्सरेटेड, इसमें अल्सरेटेड की तो हमने बात नहीं की, हमने तो सिर्फ वाइटिश लीजन की बात की है। तो वाइटिश लीजन का जो उसके मार्जिन जो आपको अपेरेंटली मार्जिन लग रहे होंगे, क्योंकि बाद दफा वाइटिश लीजन में इतना डिमार्केट करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसके मार्जिन से हेल्दी मार्जिन जो है वो तकरीबन 5 मिलीमीटर तक का आप मार्जिन जरूर लेते हो, क्योंकि बाद दफा उसकी जो सपोज ये मेलिग्नेंसी ही आ जाती है, तो मेलिग्नेंसी का अगर 2 मिलीमीटर तक का मार्जिन सेफ समझा जाता है, लेकिन बाद दफा अगर ये 2 मिलीमीटर से ज्यादा अगर मार्जिन के सपोज उसकी एक्सटेंशन है, तो यू हैव टू बी इन द सेफ लिमिट, बजाय इसके कि आप दोबारा से बायोप्सी लो। तो अमूमन जो एक रफ सा वो होता है वो 5 मिलीमीटर का मार्जिन होता है अपार्ट फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया मार्जिन, चाहे वो अल्सर हो चाहे वो वाइटिश लीजन हो, तो वो आप उसको इन्वॉल्व करते हैं। सपोज देयर आर 3 and 4 लीजन्स, इसमें तो मैंने 2 लीजन्स आपको बताई है ना, कि दोनों साइड्स के वल्वा पे, लेबिया माइनोरा पे देयर आर 2 वाइटिश लीजन्स जो कि दोनों साइड्स पे हैं, बायलैटरल हैं। तो इसमें हम बायोप्सी कहाँ कहाँ से लेंगे? क्या एक साइड से बायोप्सी लेना काफी होगा या दोनों साइड से हम लेंगे? दोनों साइड से लेंगे मैम। दोनों साइड से लेंगे, क्योंकि हर लीजन, ये अमूमन जो वल्वल लीजन्स होती हैं, अगर वो मल्टीफोकल हों दैट रेजिस मोर सस्पिशन, यानी मोर देन वन हो, तो दैट इज वो उसकी सस्पिशन फॉर बीइंग मैलिग्नेंट या प्री मैलिग्नेंट ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैडम इसकी एक्सीजनल बायोप्सी होगी या इंसिजनल बायोप्सी? एक्सीजनल का मतलब ये होता है कि आप पूरे का पूरा जो इफेक्टेड एरिया उसको निकाल दो, उसमें बाद दफा जो है ना वो वाइड डिसेक्शन, लोकल डिसेक्शन जो है ना वो काफी वाइड हो जाती है, क्योंकि बाद दफा ये एरिया बड़ा भी होता है, 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आपको तकरीबन 2.5 से 3 सेंटीमीटर की डिसेक्शन आपको ऑल अराउंड करनी पड़ेगी, जो काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए आप इसकी इंसेशनल लोगे या पंच बायोप्सी लोगे, या वेज का भी मतलब यही होता है कि आप इसमें इन्वॉल्व करते हो हेल्दी एरिया, तो वो चीज आप लोगे। और इफ इट टर्न्स आउट टू बी प्री मैलिग्नेंट, तो फिर आपने उसमें पूरे एरिया को डिसेक्ट आउट करना होता है। तो अमूमन जो एक है, लेकिन अगर बहुत छोटी सी लीजन है, यानी आप समझने के 1 सेंटीमीटर है, तो उसको आप निकाल सकते हो। सो बेसिकली इन चीजों में हमने थोड़ा सा इंडिविजुअलाइज भी करना होता है। तो अब मैडम ये आप मार्जिन की बात रिपीट कर दे, मार्जिन लेने का 5 मिलीमीटर तक मार्जिन लेने का क्या बेनिफिट होगा फिर? नहीं, उसमें ये देखो कि अमूमन जो होता है ना इसका जो एक्सटेंशन है,
सपोज ये प्री मेलिग्नेंट लीजन है और उसकी एक्सटेंशन जाहिर है मार्जिन के जो जो उसका अफेक्टेड एरिया का मार्जिन है उससे आगे हेल्दी एरिया में वो सेल्स कितने को जा रहे हैं, यानी उसका जो अंडर माइक्रोस्कोप जो स्टडी करते हैं उसमें जो हमने फर्ज किया 2 मिलीमीटर का मार्जिन ले लिया था। अब 2 मिलीमीटर का मार्जिन एग्जैक्टली मेजर करना भी बड़ा मुश्किल होता है। से 2 मिलीमीटर के मार्जिन को पूरे के पूरे को इन्वॉल्व किया हुआ है उस प्री मेलिग्नेंट लीजन ने, देन यू हैव टू डिसेक्ट इट मोर। तो अमूमन जो हम मार्जिन की इन्वेजन्स इन अ लोकल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन, यानी जिसके मार्जिन वेल डिफाइंड हो, जिसके मार्जिन वेल डिफाइंड ना हो उसमें और ये रिस्क होता है कि वो और ज्यादा इन्वेड उसने किया होगा। लेकिन अगर लोकली सर्कमस्क्राइब्ड लीजन है और उसमें हमने उसका 2 मिलीमीटर का मार्जिन लिया, तो हो सकता है कि वो लीजन जो है उस 2 मिलीमीटर तक भी एक्सटेंड हो रही हो। Then you have to go back to the patient and to take more margins around that lesion. यानी वो जो 2 मिलीमीटर था उससे आप और आगे चले जाओगे। So you have to redo the procedure. तो इसलिए उस चीज से बचने के लिए एक जनरल ये हमारा सर्वाइकल भी हम जब बायोप्सी लेते हैं तो उसमें भी अमूमन यही बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आप फिर उसका कम से कम 5 मिलीमीटर का मार्जिन लेते हैं, क्योंकि जहां तक वल्वल मेलिग्नेंसी का ताल्लुक है उसमें तो 2 मिलीमीटर के मार्जिन की एक लिमिट है। बट व्हाट इफ इट गो बियॉन्ड 2 मिलीमीटर मार्जिन, यानी उस जो 2 मिलीमीटर का मार्जिन लिया उसमें भी वो सेल्स हैं, तो फिर आपको तो दोबारा उसके लीजन को देखना पड़ेगा कि कहां तक एक्सटेंड हुई, आप उसका और वाइड मार्जिन फिर एक्सरसाइज करोगे। सो दैट वे इट क्रिएट्स सम प्रॉब्लम्स। तो इस वजह से जो है वो इसमें फिर हम उसमें थोड़ा सा वाइड मार्जिन ले लेते हैं, यानी 5 मिलीमीटर तक। इज इट क्लियर नाउ? मैम वो जो एक स्पेशल मैम वो एक फोर्सेप्स है कि फोर्सेप्स के क्या इंसिजनल बायोप्सी के लिए क्या वो जो है? 4 mm की डेप्थ का होता है उससे लेते हैं या नाइफ से लेंगे, ये किस तरह से लेंगे? देखो जो इसमें जो हम लेते हैं अमूमन पंच बायोप्सी के साथ ले सकते हैं, लेकिन जो एक जनरल प्रिंसिपल है वो ये है कि जो नाइफ के साथ इंसिजनल बायोप्सी ली होती है अमूमन वो ठीक होती है। वो इसलिए ठीक होती है कि इसमें आपने जो है वो जब पंच आप करते हो, पंच अगर फोर्सेप आपने कभी देखा हो तो दैट क्रश द टिश्यू इनसाइड इट, ठीक है। उसमें बार दफा थोड़ा सा हॉलो स्पेस तो जरूर होता है, लेकिन बाज दफा वो उसके साथ उसको लेना बड़ा मुश्किल होता है, खास तौर पे जहाँ पे स्किनी एरियाज होते हैं। तो इसलिए जो इंसिजनल बायोप्सी है वो बहुत एक शार्प कट के साथ बायोप्सी की सेलुलर हिस्टोलॉजी को डिस्टर्ब किए बगैर उसके साथ बायोप्सी लेना पॉसिबल होता है। एंड द सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर ऑल अदर बायोप्सीज, यानी जो आपने सर्वाइकल बायोप्सी भी ली उसमें भी एक यही तरीका होता है। सिर्फ ये है कि पंच बायोप्सी वगैरह के साथ जो आप लेते हैं वो उसमें ब्लड लॉस यानी उसका वो उस तरह से हेमरेज के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अदरवाइज इंसिजनल बायोप्सी बाय टेकिंग द जो नाइफ के साथ जो है वो उसमें ज्यादा बेहतर हिस्टोलॉजिकल पैटर्न इतना डिस्टर्ब नहीं होता, एंड शार्पली यू कैन गो टिल द डिजायर्ड मार्जिन्स। तो डिजायर्ड मार्जिन की जो लिमिट है वो आप आसानी से ले सकते हो। इसमें कोल्पोस्कोपी कब करेंगे? कोल्पोस्कोपी का रोल भी इसमें आ जाता है, कोल्पोस्कोपी भी और एचपीवी स्क्रीनिंग का भी। वो कब करना है? इसमें कोल्पोस्कोपी जो है वो आपकी फर्स्ट हैंड चीजों में आ जाएगी, यानी आपने कोल्पोस्कोपी को देखना है। कोल्पोस्कोपी तो आपको सिर्फ ज्यादातर वेस्कुलर पैटर्न ही बताती है ना, आपको सेलुलर पैटर्न नहीं बताती। वेस्कुलरिटी में जो चेंजेस आती हैं किसी भी मेलिग्नेंसी में, जैसे बाइजैड वेसल्स होती हैं या एवी मेलफॉर्मेशंस होती हैं, ये सारी चीजें हैं जो कोल्पोस्कोप आपको बताता है, आपको हिस्टोलॉजी नहीं बताता। इसी तरह से आप जब हम सर्वाइकल मेलिग्नेंसी की बात करते हैं तो सर्वाइकल मेलिग्नेंसी में भी कोल्पोस्कोपी का यही रोल है। बट आफ्टर द कोल्पोस्कोपी इज जस्ट एन इंटरवल इन्वेस्टिगेशन। कोल्पोस्कोपी के बाद आपने फिर भी कंफर्म करना होता है डायग्नोसिस बाय बायोप्सी। इसी तरह से वेजाइनल मैम सीटी करेंगे स्टेजिंग के लिए? सीटी देखो बायोप्सी कंफर्म तो हो जाने दो बेटा,
ठीक है, बायोप्सी कंफर्म होने के बाद ही हम उसके, अगर वो मेलिग्नेंसी निकलेगी तो हम उसकी स्टेजिंग करेंगे ना, सही, ठीक। ठीक है। तो उसमें उससे पहले करने का तो फायदा ही नहीं, हो सकता है ये कोई बिनाइन लीजन हो, ठीक है। फिर मैम कॉल्पोस्कोपी कब बताएं एग्जामिनर को? देखो, कोल्पोस्कोपी और एचपीवी स्क्रीनिंग आर वन ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आप बिल्कुल बता सकते हो इसको, जैसे हमने तो इस स्टेज से इसको पेशेंट को हमने उस स्टेज पे लाए हैं कि जिसमें ये ऑलरेडी ट्रीटमेंट दे चुकी है। आपने हिस्ट्री पे जब पूछा तो उसने बताया कि मैं 2-3 महीने से ऑफ एंड ऑन इस पे क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, मैंने एंटी एलर्जिक भी खाई है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पेशेंट ने आपको हिस्ट्री पे बताना है, आपको सिनेरियो में नहीं बताया हुआ, लेकिन आपने हिस्ट्री पे पूछना है और हिस्ट्री पे पेशेंट ने आपको ये बताया। अब उसके बाद जो है वो आप इसमें कॉल्पोस्कोपी कर सकते, एचपीवी स्क्रीनिंग जरूर करो, लेकिन कॉल्पोस्कोपी आप उस वक्त उसमें आप कर तो सकते हैं, लेकिन कॉल्पोस्कोपी आपका डायग्नोसिस कंफर्म नहीं करेगा। अमूमन ये बाद में जो ऑनवर्ड मॉनिटरिंग होती है उसका ज्यादा रोल फिर उसमें आ जाता है। या सपोज पेशेंट जो है वो उसको टेम्परेरीली हमने उसको लाइकन स्क्लेरोसिस या प्लेनस में लेबल कर दिया बायोप्सी कंफर्म करने के बाद, और उसके बाद पेशेंट की हमने मॉनिटरिंग करनी है, बिकॉज स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ प्रोग्रेशन इनटू VIN, वल्वल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेसिया। तो उस चांसेस को, उसके लिए फिर टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग की जरूरत होगी, विच विल बी बाय द कॉल्पोस्कोपी। अलबत्ता अगर वो HPV स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ जाती है तो हम वी विल डील इट अकॉर्डिंगली। तो अब इसमें हम बायोप्सी हमने ये ले ली, ठीक है। अब बायोप्सी में सपोज मैम ये 65 इयर्स ऑफ एज है, इसमें पैप स्मीयर बनेगा? पैप स्मीयर मांगेंगे? डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि देखो जब भी कोई वल्वल लीजन या विजाइनल लीजन हो या वाइस वर्सा सर्वाइकल लीजन हो, तो आप ये तीनों सर्विक्स, वल्वा, विजाइना, अमूमन इनमें कुछ हिस्टोपैथोलॉजीज जो कुछ जो रिस्क फैक्टर या जो कॉजेज ऑफ मैलिग्नेंसीज है वो शेयर करते हैं। तो इसमें जो शेयरिंग वाली जो कॉज है वो है HPV। तो HPV की जी स्क्रीनिंग जो हम सर्वाइकल CA के हिसाब से करते हैं या उसकी जो मैनेजमेंट करते हैं या उसकी जो प्रोटेक्शन है या प्रोफाइलैक्सिस है, दैट इज सेम फॉर ऑल दीज 3 मैलिग्नेंसीज। इन तीनों के साथ हम उसी तरह से करते हैं, तो इसलिए आप इसको उस तरह से लेके चलेंगे, ठीक है। मैम अगर ये 70 प्लस, अगर ये 70 या 80 प्लस हो फिर भी हम HPV स्क्रीनिंग मांगेंगे? अमूमन हम 65 के बाद सर्वाइकल स्क्रीनिंग को खत्म कर देते हैं, ये हमारी एक एज लिमिट होती है। बट प्रोवाइडेड, अब देखो ये वल्वल CA और विजाइनल CA इज अ मैलिग्नेंसी ऑफ ओल्ड एज, अमूमन 60 प्लस में ये होता है। तो अब इसकी प्राइमरी वल्वल है या प्राइमरी सर्वाइकल है, ऐसा सर्वाइकल CA की एज पीक रिप्रोडक्टिव एज होती है। तो लेकिन एक होती है मीन एज, लेकिन वल्वल विजाइनल CA तो बाद दफा यंग एज पेशेंट्स में भी नजर आ जाता है। तो इस वजह से आप उसमें आपने उसकी स्क्रीनिंग करनी है, चाहे वो 65 से ऊपर भी हो, अगर कोई वल्वल लीजन एग्जिस्ट करती है तो। अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर तो आप 65 पे बंद कर देते हैं। सो हियर कम्स द रोल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड केयर, यानी आपने हर केस को इंडिविजुअलाइज करना है, उसकी जो पैथोलॉजी है या कोमॉर्बिडिटी जो है उसके हिसाब से आप वो वाली स्क्रीनिंग भी करोगे, वो वाले टेस्ट भी करोगे जो अमूमन एज स्पेसिफिक होते हैं। तो इसलिए इसमें हमने सर्वाइकल स्क्रीनिंग करनी जरूरी है। फिर उसमें आप कॉल्पोस्कोपी भी कर सकते हो सर्विक्स की, आप इवन विजाइनोस्कोपी भी करोगे जो कॉल्पोस्कोप के साथ ही की जाती है। और वल्वोस्कोपी जो है वो उस सूरत में जब ये पेशेंट को हमने ट्रीट कर लिया या हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे करनी है, बट वी विल मॉनिटर हर फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ दैट डिजीज। यानी इसको हमने देख लिया कि अब इसमें मैलिग्नेंसी नहीं है, एक सिनेरियो ये है कि इसमें मैलिग्नेंसी नहीं है, लाइकन स्क्लेरोसिस या प्लेनस में से कोई एक चीज आ गई, then comes the role of conservative management. But its progression to malignancy या pre-malignancy condition cannot be excluded unless you monitor for it. क्योंकि हमने उस अफेक्टेड एरिया को निकाला तो नहीं है, हमने उसको हम कंजर्वेटिवली ट्रीट कर रहे हैं। अगर चाहिए बिनाइन कंडीशन लेबल हो गई जिसपे हमें फर्दर मजीद सर्जरी पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी प्रोग्रेशन जो है वो चल सकती है। There are possibilities, 4 to 5% possibilities कि ये फिर भी प्रोग्रेस कर जाए,
और लाइकन स्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में ज्यादा चांसेस होते हैं टू प्रोग्रेशन टू वल्वल सीए। तो इसलिए हम इसको उन केसेस में ऑनवर्ड स्क्रीनिंग विल बी बाय वल्वोस्कोपी, जो हम अगेन कोल्पोस्कोप के साथ कर सकते हैं, और उसमें सर्वाइकल स्मेयर को भी टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग शेड्यूल टाइम के हिसाब से रिपीट करना जरूरी होगा, क्योंकि जहां पे भी ये जो है वो वल्वल प्रॉब्लम्स आते हैं वहां पे ऑलमोस्ट इन 6% ऑफ केसेस CIN कैन को एग्जिस्ट। तो इस वजह से हम उन केसेस को फिर हम स्किप नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? हम आगे मूव करें? Yes, लगता है ma'am, I have a question. आप जो बायोप्सी की बात कर रही थी 5 mm, हम डेप्थ में लेंगे उसकी 5 mm या उसकी लेटरल एक्सटेंशन फ्रॉम द इंटरफेस देखो ऑफ द lateral नॉर्मल एंड extension होती है, नहीं मैं बताती हूँ, इसमें लेटरल एक्सटेंशन तो वो लेटरल डिसेक्शन तो हमने कर ली, बट इट शुड बी स्किन डीप ओनली, ठीक है ना? इसमें हम उसके सबकुटेनियस टिश्यू पे नहीं जाएंगे, इट शुड बी स्किन डीप ओनली, क्योंकि अब हमने जो इसकी डेप्थ ऑफ इन्वेजन देखनी है, डेप्थ ऑफ इन्वेजन तो तब ही हम लेंगे ना जिसमें सिर्फ खाली एपिडर्मिस ही ना हो, बल्कि उसका जो पूरी फुल थिकनेस जो होती है स्किन की, उसमें ऊपर की लेयर के साथ उसके सारे नीचे सारे टिश्यूज आ जाते हैं, तो उसमें हमें फिर डेप्थ ऑफ इन्वेजन का पता चल जाता है। और डेप्थ ऑफ इन्वेजन की जो एक कट ऑफ लिमिट है वो क्या है आयशा? मैम डेप्थ ऑफ than 2 जो के स्टेज less than 1 mm मैम। हाँ, लेस देन 1 mm, ठीक है। तो लेस देन 1 mm पे हम अमूमन जो है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे भी जा सकते हैं, और उसमें लोकल जो एक्सीजन है उसमें भी जा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू बी प्रैक्टिस, लेकिन मोर देन 1 mm जो है वो फिर थोड़ा सा हाई रिस्क में आ जाएगा। तो हाई रिस्क में जब आता है तो फिर उसमें आपका जो चेन ऑफ मैनेजमेंट है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इसमें हमने स्किन डीप उसमें लेना होगा, बहुत ज्यादा डीप नहीं लेते, जाहिर है हमने उसमें बायोप्सी ही लेनी है, उसमें ये तो नहीं कि हम उसको पूरा एक्सरसाइज ही कर रही हैं। तो इसलिए जो है वो स्किन डीप एंड 5 mm अराउंड द हेल्दी मार्जिन्स, ठीक है। अब हम आगे चलें। मैडम, ये हम कॉल्पोस्कोपी, अगर हमारे पास लाइकन स्क्लेरोसिस आ रहा है और हम उसको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, लेकिन अभी वो स्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इस केस में भी हम वल्वास्कोपी करेंगे कॉल्पोस्कोप से? और हमने रूल आउट कर लिया कि मैलिग्नेंसी नहीं है तो भी, लेकिन जो देखो जो नॉन जो के होते हैं पेशेंट जिनमें मैलिग्नेंट नहीं है, तो उसमें हमने जो है वो लिया, हमने ये सारा कुछ, हमने स्टीरॉइड भी दिया, अगर जब वो पहले भी ले चुकी है। तो इसमें अगर फर्ज किया कि फिर लाइकन स्क्लेरोसिस आ जाता है या लाइकन प्लेनस आ जाता है, अब लाइकन स्क्लेरोसिस है जो ज्यादा, जिसमें चांसेस होते हैं प्रोग्रेशन टू सीए, तो फिर इसमें हमारे पास रोल आता है कि फिर हम इसको मजीद उस थेरेपी पे, लेकिन हमें पहले रिव्यू करना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट उसने ली क्या। तो उसमें जो है वो ट्रीटमेंट जो उसने अगर फर्ज किया ऑलरेडी जो है वो हाई पोटेंसी स्टीरॉइड उसने यूज कर लिया, तो फिर हम इम्यून मॉड्यूलेटर्स का रोल इसमें आ जाएगा कि कम से कम हम वो ट्राई कर लें। फर्ज किया कि उसने वो भी ट्राई कर लिए हुए हैं, क्योंकि अमूमन 2-3 हफ्ते में हमें पता चल जाता है कि इट विल बी इफेक्टिव और नॉट। तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उस लोकल एरिया को एक्साइज कर दें, इसमें लोकल एक्सीजन ऑफ दैट लीजन आ जाएगी, यानी वो एरिया जो अफेक्टेड एरिया है उसको हम लोकली एक्साइज कर दें। इफ इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट बट स्टिल देयर इज नो मैलिग्नेंसी, तो मैलिग्नेंसी जो है वो उसको हम रूल आउट करने के बावजूद भी हम इसमें लोकल एक्सीजन कर सकते हैं, या उसको लेजर के साथ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, विच इज अगेन आर ट्रीटमेंट ऑफ इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेसिया। यानी ये फिर वो वाला बॉर्डर लाइन केस आ जाएगा जिसमें पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया बट मैलिग्नेंसी हैज बीन रूल्ड आउट। पेशेंट कहती है कि आई वांट टू गेट रीड ऑफ दिस सिचुएशन, शी डजंट वांट टू कंटिन्यू मोर विद दिस ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, देन इट्स बेटर टू एक्साइज दैट लीजन। और यही वो थेरेपी है, या हम इसको जो है वो लोकली हम इसमें और बहुत सारी इम्यून मॉड्यूलेटर्स को हम ट्राई कर सकते हैं, और अगर फर्ज किया वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर हम उसमें लोकली उसको एक्साइज कर दें। ये तो हमारे पास रोल है, वो है हमारे पास ऑप्शन है।
कि हम उसको लोकली एक्साइज कर दें, चाहे वो लाइकन स्क्लेरोसिस है और चाहे वो लाइकन प्लेनस की है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें चलते हैं पेशेंट की बायोप्सी। इज इट क्लियर बाय नाउ? Yes, ma'am. मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम आपने जी, जी। एग्जामिनेशन का बताया कि जब हम हाँ जी। एग्जामिनेशन की तरफ आए तो हम कहे कि जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन, लाइक आई हम्म, विल डू जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम जो है वो लाइक नेल्स देखेंगे, मतलब सारा उसको बताएंगे, नेल्स देखेंगे, पल्स देखेंगे, वाइटल्स देखेंगे, फिर हम उसके ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, पर एब्डोमेन भी मैं करूंगी, फिर देन आई विल गो फॉर लोकल एग्जामिनेशन फॉर एक्सटेंड लाइक जो लोकल एग्जामिनेशन अब जो वल्वल की आ जाती है, तो जो है उसमें ट्यूमर का साइज, लीजन कितने हैं, उसकी एक्सटेंशन कितनी है, ये सारा देखना है, उस पर कोई चार्ज और ये नहीं है। मैम जो आपने बात की इन्वेस्टिगेशंस की, तो उसमें हम पहले बेस लाइन पे हैं, उसके बाद हम फिर कहाँ से अल्ट्रासाउंड से स्टार्ट करके, मतलब थोड़ा सा स्टेप वाइज बता दें। हाँ, मतलब देखो अल्ट्रासाउंड तो आप करोगे ना, इसमें को एग्जिस्टेंट जो विजाइनल पैथोलॉजी है या बाकी चीजें वो आपने देखनी है, ओवरी का स्टेटस देखना है, विजाइनल जो है वो अल्ट्रासाउंड वगैरह वो जो आप लोकल एग्जामिनेशन जाहिर करोगे भी। तो लेकिन ये है कि इसमें आप MRI CT वगैरह पे राइट ऑन द फर्स्ट हैंड आप नहीं जाएंगे। ठीक है, वो बायोप्सी की कंफर्मेशन के बाद होता है। जी तो मैम। लेकिन ये MRI करेंगे या CT करेंगे? इसमें दोनों का ही रोल आ जाता है। लोकल इन्वेजन जो होती हैं, जैसे अगर पेशेंट का मेलिग्नेंसी आ जाती है सपोज के स्टेज 1 पे या माइक्रो इन्वेजन है मोर देन 2 मिलीमीटर है, तो उसको फिर हम एक प्रॉपर उसके हिसाब से कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से फिर हट के हम चलेंगे। तो MRI जो है वो लोकल आपको इन्वेजन यानी लोकल इन्वेजन टू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर, लेकिन डिस्टेंट मेटास्टेसिस आर ऑलवेज बेटर एवेलुएटेड बाय CT विद कंट्रास्ट। वहां पे फिर आपने पूरे का पूरा जो वर्कअप है वो आपने करना है। तो उस वर्कअप में फिर सारे LFTs RFTs ये सब की सब चीजें होंगी जो कि इसमें आ जाएंगी, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द स्टेजिंग प्रोसेस। और CT और MRI जो है वो भी एक स्टेजिंग प्रोसेस का पार्ट है। ज्यादा बेहतर हम अमूमन CT के साथ ही इन लीजेंड्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, चाहे वो मैम सेंटिनल लिम्फ नोड यहीं पे बताएंगे या ट्रीटमेंट के दौरान बताएंगे सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी? नहीं, वो तो देखो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी तो तब आप लेते हैं जब आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, इधर ऑफ प्री इन्वेजिव और इन्वेजिव डिजीज। तो वो फिर आपने मैनेजमेंट के साथ बताना है। अब फर्स्ट किया मैं अगर इसकी बायोप्सी रिपोर्ट बता दूं कि इसमें बायोप्सी इसकी आई है विच इज स्क्वेमल सेल कार्सिनोमा, और उसमें जो डेप्थ ऑफ इन्वेजन है दैट इज मोर देन 1 मिलीमीटर। तो फिर इसमें जो है वो सारी चीजें फिर आ जाएंगी, जिसमें सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी का भी और बाकी जो सारी मैनेजमेंट है इन 65 इयर्स ओल्ड लेडी वो क्या होगी। तो ये अगर हम अब आयशा की तरफ मूव करें कि वो हमें बताएंगी कि Ma'am, there I will do radical. Well, I will counsel the patient about the diagnosis and management, and I will prepare her for radical valvectomy. And I will also do lymph node dissection. If the lesion is, as the lesion is bilateral and malignancy has been confirmed, so I will do bilateral lymph node dissection, ma'am. अच्छा बस, इज इट सो इजी? कैसे करोगे, कैसे करोगे, उसका तरीकाकार क्या है, प्री ऑफ प्रेपरेशन क्या है, उसमें और कौन कौन से जो है वो उनको इन्वॉल्व करोगे आप, और विल यू डू इट योरसेल्फ? Yes, ma'am. I'll involve multidisciplinary team approach involving senior gynecological oncologist and radiologist and oncologist also. And I will in pre-op preparation, I will do the workup including ECG, chest X-ray, LFTs, RFTs, and I will do anesthesia evaluation and fitness of the patient. I will optimize her HP and status of blood sugar level and hemoglobin in liaison with physician if needed. And I will rule out all the other comorbidities of the patient. Then I will admit the patient for radical valvectomy, and I will adopt the WHO surgical safety checklist before the procedure, and I will ma'am, I think I will
do the radical नहीं, valvectomy. देखो अब ये जो है वो मोर देन 1 मिलीमीटर की मैंने आपको इन्वेजन, डेप्थ ऑफ इन्वेजन बता दी। जी मैम। इससे आपको क्या अंदाजा हुआ? मैम इससे ये कि आपने इसमें, अब देखो इसमें जो दूसरा चीज होती है स्टेज ना, 1 तो नहीं है, इट इज क्या है? आई मीन इट इज नॉट स्टेज 1A at least मैम, it is at least stage 1B मैम। मिनिमम स्टेज 1B, बट इट कैन बी बियॉन्ड ऑफ दिस स्टेज। यस मैम। ठीक है, ये उस स्टेज से आगे भी जो है वो जा सकती है। अब वो स्टेज क्या है, आपका पहला काम है उस स्टेज को आइडेंटिफाई करना। आपकी ट्रीटमेंट उसके बाद फिर मैनेज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेप्थ ऑफ इन्वेजन आपकी आ जाती है मोर देन 1 मिलीमीटर, तो उसमें फिर आप लिम्फ नोड इमेजिंग करते हैं। ठीक है, जो सीटी स्कैन के साथ हम करेंगे। लिम्फ नोड इमेजिंग के बाद आपने प्राइमरी लीजन का जो है उसका साइज वो भी देखना है। प्राइमरी लीजन का साइज अगर लेस देन 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसमें बेसिकली जो वल्वल सीए की जो अपडेटेड स्टेजिंग है वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। मुझे तो खैर टाइम टू टाइम भूल जाती है वो, इतनी फाइन। और ये स्टेजेस वो हैं क्योंकि हर मेलिग्नेंसी की एक स्टेज है। अब हर मेलिग्नेंसी की जो स्टेज है वो, सही बात है, आपस में गड़बड़ हो जाती है। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप डिफरेंट जो मेलिग्नेंसी की स्टेजेस हैं वो आपके सामने टेबल पे हर वक्त रखी हुई हो। एक जनरल तो हमें पता होता है कि स्टेज 1 है जिसमें लिमिटेड टू दैट ऑर्गन, स्टेज 2 है जिसमें जो कि उस ऑर्गन से बियॉन्ड जो इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर है उसमें आ जाता है, स्टेज 3 है जो कि पेल्विक वॉल पे चला गया, फिर स्टेज 4 डिस्टेंट मेटास्टेसिस है। ये तो एक ओवरऑल है जो हर एक का एक बेसिक रूल है। लेकिन अब फाइन जो सब डिवीजन है डिफरेंट मेलिग्नेंसी की, वो हर मेलिग्नेंसी की फर्क है। अब जैसे इसमें जो इसकी लेटेस्ट अपडेटेड जो वल्वल मेलिग्नेंसी की जो स्टेजिंग है उसमें अब ये 2021 में अपडेट हुई थी, उसमें उन्होंने ये 1 मिलीमीटर की डेप्थ ऑफ इन्वेजन डाल दी थी और उसके हिसाब से फिर उन्होंने उसको स्टेज 1A और 1B में डिवाइड किया, क्योंकि उनके हिसाब से ये डेप्थ ऑफ इन्वेजन 1 मिलीमीटर है या उससे ज्यादा है, उसका प्रोग्नोसिस बहुत फर्क हो जाता है, उसकी लिम्फोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट बहुत फर्क हो जाती है। So if we are talking about a stage beyond 1 millimeter of depth of invasion, तो उसमें आप inguinal lymph node की इमेजिंग करोगे सीटी स्कैन। अब अगर उसमें इमेजिंग करने के बाद आपको पता चला लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, तो उसमें फिर उसके बाद मजीद सब डिवीजन इसमें आएगी कि प्राइमरी लीजन जो है वो 4 सेंटीमीटर से कम है या ज्यादा है। अगर कम होगी और उसमें कोई सस्पिशन ऑफ नोड्स नहीं है, यानी उसमें आइलियोफेमरल लिम्फ नोड्स या पेल्विक जो इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन सेंटिनल लिम्फ नोड की फिर आपने उसको खास तौर पे देखना है। सेंटिनल लिम्फ नोड को आप बाद दफा रेडियो आइसोटोप को इंजेक्ट करके भी आप ले सकते हो, तो उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि बाद दफा वो सीटी पे उस तरह से विजिबल नहीं होती, लेकिन आप ये सेंटोग्राफी जो है वो उसके साथ कर सकते हैं। तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी अगर वो उस पे पॉजिटिव आ जाता है इमेजिंग स्टडी पे, तो खास तौर पे अगर ये सेंटिनल लिम्फ नोड ये करीब हैं उसके मिड लाइन के, तो फिर उसमें जो लिम्फोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जो पेशेंट के जो मेलिग्नेंसी प्रोग्रेशन है उसके चांसेस ज्यादा होंगे, तो इस वजह से जो है वो उसमें आपने उसकी लिम्फ नोड बायोप्सी जरूरी लेनी होगी। बट इफ सपोज जो प्राइमरी लीजन है दैट इज मोर देन 4 सेंटीमीटर, या अगर उसका साइज ज्यादा है, या उसमें उसकी मल्टीफोकल डिजीज है, या फिर सस्पिशियस लिम्फ नोड्स हैं ऑन अल्ट्रासाउंड ऑन इमेजिंग स्टडीज, then you will go for the inguinal lymph node dissection। सिर्फ एक साइड की अगर ये lateral lymph node involvement है और bilaterally लोगे if these are close to the midline, यानी अगर 1 सेंटीमीटर मिड लाइन के बिल्कुल 1 सेंटीमीटर की विसिनिटी में है, तो फिर आपने बायलैटरल लिम्फ नोड डायसेक्शन इसमें करनी होगी। तो इस तरह से करके आपने उसको सब डिवाइड करना होगा, इवन इफ द डेप्थ ऑफ इन्वेजन हैज बीन मेंशन्ड टू बी मोर देन 1 मिलीमीटर। तो इसको फिर इस तरह से लेके चलो, एंड द फर्दर इमेजिंग स्टडीज विल डिटरमिन
यानी उसमें अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, एंड एमआरआई तो आपको लोकली वो सारा ओवेरियन एंड यूट्राइन स्टेटस ये वो सारा कुछ बताएगा, बिकॉज देन यू हैव टू गो फॉर द रेडिकल वल्वेक्टमी। रेडिकल वल्वेक्टमी के साथ लिम्फ नोड डायसेक्शन, एंड दिस विल बी थ्रू सेपरेट इंसिजन्स। यानी आपने जो वल्वेक्टमी करनी है अराउंड द लेबिया मेजोरा and excluding the anal area only, लेकिन उसमें सारा क्लाइटोरिस यूरिथ्रा वाला एरिया भी आएगा। और इसके अलावा जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं उनकी एक अपनी अलहदा से डिसेक्शन उसमें इंसिजन्स के थ्रू आपने लिम्फ नोड्स उसमें निकालनी होगी। सो दिस विल बी हाउ यू हैव टू गो फर्दर जब आपको एक स्टेज बताई जाती है। बट सपोज इफ आई से दैट डेप्थ ऑफ इन्वेजन इज लेस देन 1 मिलीमीटर, तो फिर उसमें सिर्फ वाइड लोकल एक्सीजन इज अनफ। वाइड लोकल एक्सीजन के बाद आपने लिम्फ नोड डिसेक्शन की अमूमन जरूरत नहीं होती। इन द केसेस वेयर डेप्थ ऑफ इन्वेजन इज लेस देन 1 मिलीमीटर, तो वहां पे लिम्फ नोड डिसेक्शन नहीं चाहिए। हाउएवर यू हैव टू मॉनिटर द केस, और मॉनिटरिंग ऑफ केस में जो हमने पहले चीजें डिस्कस की, और इनिशियली एक और चीज जो इसमें हमने जो इसमें जरूरी है मेंशन करने वाली, वो ये कि इसमें आपने इनिशियल जो लीजन होती है आपने हमेशा उसका एक रिकॉर्ड रखना होता है, उसका साइज क्या है। आप उसको पेशेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है उन पे आप डायग्राम बनाते हो, खास तौर पे जिस एरिया से हमने बायोप्सी ली वो। दिस इज अ रिकॉर्ड फॉर एवर टू बी मॉनिटर्ड टाइम टू टाइम। उसमें उसकी एक्सटेंट ऑफ लीजन है या नहीं है, बिकॉज दिस विल, या उसमें रिकरेंस है या नहीं है। जिस एरिया से हमने बायोप्सी ली या जिस एरिया से हमने वाइड लोकल एक्सीजन कर ली, उसके अलावा किसी और एरिया पे अगर रिकरेंस होगी, दैट विल टेल अस अबाउट द रिकरेंस ऑफ न्यू लीजन्स। तो उसमें जो है वो फिर हमें मॉनिटर करने में आसानी होगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम इसमें बल्बोस्कोपी करते हैं या जो कोल्पोस्कोपी के साथ हम हेल्प लेते हैं वो इसके अलावा है। तो ये तो हो जाएगा जो उसकी मॉनिटरिंग से रिलेटेड होगी। लिम्फोवेस्कुलर स्पेस इन्वॉल्वमेंट का कैसे पता चलता है? इसका लिम्फोवेस्कुलर स्पेस इन्वॉल्वमेंट, देखो लिम्फोवेस्कुलर अमूमन हम लिम्फ नोड्स को ही आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, बट समटाइम्स वी कैन इंजेक्ट रेडियो आइसोटोप जिसको हम सिंटोग्राफी कहते हैं। और ये चीज जो है ये इसके साथ हमें खास तौर पे लिम्फ नोड्स अगर इफ नॉट आइडेंटिफाइड इवन ऑन द सीटी स्कैन, क्योंकि सीटी स्कैन पे भी जो 1 सेंटीमीटर से कम वाली वो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं होती। 2 सेंटीमीटर वाली हमें क्लिनिकल पैल्पेबल होती हैं, और उससे जो 2 सेंटीमीटर से कम वाली हैं वो हमें सीटी पे आइडेंटिफाई होती हैं। लेकिन अगर माइक्रो इन्वॉल्वमेंट है उसकी लिम्फ नोड्स की, तो उसमें हमें उसका लिम्फोग्राफी से पता चलेगा। तो ये भी एक तरीका होता है लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट को चेक करने का, जो हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट मैम जिसको ये सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कहते हैं, हाँ वो तो पता है अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो, अगर पॉजिटिव आए तो नहीं मैम 1A में तो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं है ना, 1B ऑनवर्ड्स हम सेंटिनल लिम्फ नोड 1B ऑनवर्ड में लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसी वजह से हम लिम्फ नोड या लिम्फ नोड सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी नहीं लेते स्टेज 1A में, लेकिन हम ये वाली लेते हैं अगर ये स्टेज 1A से आगे है तो लिम्फ नोड बायोप्सी लेते हैं। हमने मेरा पिछले 1B मैम 1B में 1B से ऑनवर्ड्स हम 1B से ऑनवर्ड्स मैम हम जो है ना सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं। मैम आप कह रही हैं कि ये जो लिम्फोग्राफी है, अगर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी पॉजिटिव आती है तो उसके बाद लिम्फोग्राफी करते हैं, या सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी बेसिकली हमने इनग्वाइनल लिम्फ नोड इमेजिंग करनी होती है। अब इनग्वाइनल लिम्फ नोड इमेजिंग जो है, अब इसमें 2 चीजें थी जो हमने मेरा ख्याल है पिछली दफा भी डिस्कस की थी कि बाद दफा ऐसे होता है कि इमेजिंग स्टडीज पे नहीं आती, और इसमें अगर फर्ज किया ये सेलुलर इन्वॉल्वमेंट है या अगर ये माइक्रोस्कोपिक इन्वॉल्वमेंट है तो वो उसमें साइज तो नहीं बढ़ा हुआ होता। तो ऐसे केसेस जो हैं वो फिर रेडियो आइसोटोप इंजेक्ट करने से, क्योंकि मैलिग्नेंट सेल जो हैं वो उनके रेडियो आइसोटोप से डिटेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए जो है वो उसमें हम उसके साथ भी स्टडी कर सकते हैं। अब इसमें अगर तो आ जाती है ये लिम्फ नोड जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमें सीटी पे नहीं पता चलती, लेकिन जो लीजन का साइज है बहुत छोटा है,
यानी लेस देन 4 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें कोई सस्पिशियस नोड नहीं मिलती ऑन स्कैन। अब सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी लेने का मकसद क्या होता है? वो यही होता है कि वो नोड है जिसमें सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट होगी। तो इसलिए अगर वो वाली नोड पॉजिटिव है तो इसका मतलब है बाकी नोड्स को निकालना जरूरी है। अगर ये सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी की नोड नेगेटिव आ जाती है तो फिर बाकी को टच करने की जरूरत नहीं है, उसका फायदा सिर्फ ये होता है। ठीक है, तो इसलिए सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी स्टेज 1B के बाद ले लेना चाहिए। अगर ये इमेजिंग स्टडीज पे भी ना आए लेकिन वो हमें पता चल जाएगा रेडियो आइसोटोप को इंजेक्ट करने से। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, इसमें जो ये चीज मेरा ख्याल है अगर आपने पिछला वो अटेंड किया हो कि हमने पिछली दफा भी कहा था कि सेंटिनल लिम्फ नोड को बायोप्सी को करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि माइक्रोस्कोपिक डिपॉजिट्स या माइक्रोस्कोपिक मेटास्टेसिस आर नॉट बीइंग डिटेक्टेड बाय एनी इमेजिंग स्टडीज। लेकिन हमारी तसल्ली क्योंकि स्टेज 1B के बाद और क्या स्टेज है वो तो हमने बाकी चीजों से भी हमने डिटरमिन करना है, फिर फाइनली हम स्टेज करेंगे। लेकिन अगर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी नेगेटिव आ जाती है तो फिर हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी एक्सेप्ट फॉर एक्सीजन ऑफ द एरिया, जो वाइड लोकल एक्सीजन। मैम जब सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी नेगेटिव भी आए तो हमने फिर भी मैम यूनिलैटरल लिम्फेडेनेक्टमी तो करते हैं ना, लिम्फ नोड डाइसेक्शन यूनिलैटरल तो करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाती है तो फिर हम बायलैटरल कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। I think so. इसको वैसे आप कंफर्म जरूर कर लेना because we ourselves are not oncologists. मैम ऐसा फिगो लिखा हुआ फिगो न्यू गाइडलाइन सेंटिनल सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी हमने लेनी है यूनिलैटरल अगर वो लैटरल मार्जिन पे है लीजन तो, लेकिन हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी बायलैटरली लेंगे अगर वो सेंटर के करीब है लीजन तो। लेकिन अगर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी नेगेटिव आ जाती है तो हमें लिम्फेडेनेक्टमी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन और ये सिर्फ उसी सूरत में है जब ये जो प्राइमरी लीजन है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर है और कोई हमें नोड ऑन स्कैन नहीं मिली, तो उस सूरत में फिर हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे यूनिलैटरल अगर लैटरल लीजन है, बायलैटरल अगर सेंट्रल लीजन है। लेकिन अगर प्राइमरी लीजन फॉर मोर देन 4 सेंटीमीटर है या मल्टीफोकल एरिया, ये वुमन मल्टीफोकल ही होती हैं, ओवेरियन मेलिग्नेंसी, जो एंडोमेट्रियल मेलिग्नेंसी, वल्वल मेलिग्नेंसी, वेजाइनल मेलिग्नेंसी आर एट मल्टीफोकल है, यानी मुख्तलिफ जगहों पे होती हैं, ये एक सिंगल लीजन के तौर पे अमूमन नहीं होती। तो अगर ये मल्टीफोकल हो, मोर देन 4 सेंटीमीटर इसका साइज हो या फिर सस्पिशियस लिम्फ नोड है ऑन स्कैन, तो इसमें हमें हर हाल में इनग्वाइनल लिम्फ नोड डिसेक्शन करनी है। इसमें वो लिम्फ नोड डिसेक्शन इप्सिलैटरल होगी अगर एक लैटरल लीजन है और ये बायलैटरल होगी अगर ये सेंट्रल लीजन है। इज इट क्लियर सो फार? मैम ये न्यू फिगो में ना अब चीजें चेंज हो गई हैं, जो मैम न्यू फिगो है ना गाइडलाइन मैम उसमें ये 4 सेंटीमीटर वाली बात जो है ना ये भी चेंज है मैम, मतलब कि 1B 1A मैम जो स्टेज 1 है ना उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपकी लीजन 2 सेंटीमीटर से कम है और डेप्थ 1 mm से कम है, दिस इज 1A। 1B जो है अगर लीजन 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है और डेप्थ 1 mm से ज्यादा है, और जो 1B है ना मैम उसमें आपने सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करनी ही करनी है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आ जाती है तो बायलैटरल लिम्फ डाइसेक्शन करनी है, अगर वो नेगेटिव आती है तो यूनिलैटरल लिम्फ डाइसेक्शन करनी है। ये मैम अब मतलब ये न्यू चीजों में चेंज हो गया, और जो अभी 2018 के बाद जो 2021 में आई है ना उसमें स्टेज 3 इन्होंने चेंज कर दिया है। तो ये थोड़ी सी चीजें, बाकी आपकी बात मैम वो सही है कि सेंट्रल लीजन है तो हमने बायलैटरल करना है। ठीक है, चलो इसको हम मजीद डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लियर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो वल्वल लीजन्स या लाइकन स्क्लेरोसिस या लाइकन प्लैनस ये हमें देखने को मिलते हैं। इवन वेजाइनल मेलिग्नेंसीज जो है वो भी हमें देखने को मिलती हैं, अगरचे ये रेयर मेलिग्नेंसीज है लेकिन फिर भी ये इतनी रेयर नहीं है कि कभी कोई इसको एनकाउंटर ना कर सके। चूंकि ये रेयर है इस वजह से इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस या प्लान ऑफ मैनेजमेंट बताना या हाउ टू प्रोसीड फॉर द इन्वेस्टिगेशंस एंड हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे ये सारी चीजें इतनी अपडेटेड नहीं होती।
तो लेकिन ये है कि लेट मी सी इट ऑल्सो, ठीक है, इसको हम देख लें कि इसमें क्या है, और इसको फिर हम मजीद इसको थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेंगे अगले सेशन में, ठीक है, क्योंकि मैम ये एग्जाम में एक भी, बात मैम और ये पूछ- एग्जाम में भी आए हैं, जुलाई में भी और हाँ, नवंबर में मैं भी, वही तो कह रही हूँ ना इससे कि बहुत ये अच्छा देखो challenges आपके जो मॉड्यूल है ना, एक मॉड्यूल जो है वो आपका है ही ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड, इसलिए हर डे पे एक मैलिग्नेंसी रिलेटेड क्वेश्चन आना बहुत जरूरी होता है, ये मस्ट आता ही आता है। अब पहले हर दफा ओवेरियन या सीए या ओवेरियन या फिर सर्वाइकल या एंडोमेट्रियल तो नहीं आ सकते, विच आर मोर कॉमन ट्यूमर्स। तो इसमें ये विजाइनल और वल्वल ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल आ सकती हैं, तो इस वजह से इसके बारे में एग्जैक्ट जानना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अब हम में से कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, सो वी हैव लिमिटेड नॉलेज एज वेल, लेकिन लेट मी सी इट ऑल्सो, ठीक है। इसको मैं देखती हूँ कि इसमें क्या है, बिकॉज एज फार एज आई नो जो मुझे इसका पता था वो इस हिसाब से था, बट लेट मी सी इट कि इसमें जो लेटेस्ट है वो इसमें क्या वो चीजें हैं। बाकी इसका जो बाकी इसमें रेडिकल वल्वेक्टमी है, या इसमें हमने जो रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी का रोल है, आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर, उसमें कोई ऐसी एम्बिग्विटी वाली बात नहीं है, वो जरा थोड़ी सी क्लियर चीजें हैं। तो इसको मैम एक बात और पूछनी कल मैम ये एग्जाम तो कैंसर में लिम्फ नोड आ जाते हैं और मेटेड और सॉलिड, और उनकी एफएनए का कोई रोल है उसमें? एफएनए करना देखो, चाहिए। ये बायोप्सी का एक तरीका है ना, बायोप्सी जी। का एक तरीका है कि एफएनएसी आप कर लो, ठीक है। ठीक ये है। जैसे आपने सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करनी है तो ये एफएनएसी उसका एक तरीका है। आप उसको पूरे का पूरा अगर बाल दफा नहीं निकाल सकते तो एफएनएसी इज वन ऑफ द मेथड ऑफ टेकिंग लिम्फ नोड बायोप्सी, ठीक है। तो Excuse me, इसको फिर ma'am. आज के सेशन को हम यहीं पे फिर कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वी विल कैरी ऑन विद द रेस्ट ऑफ दिस थिंग वल्वल सीए में जो हमारी चीजें कुछ क्लियर करने वाली हैं वो, विजाइनल और जो ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी आपने पिछली दफा कहा था। मैम एक क्वेश्चन एक और रिक्वेस्ट है, जी जी, मैडम ब्रेस्ट इन प्रेगनेंसी। हाँ जी, वही ब्रेस्ट सीए इन प्रेगनेंसी, सारे ब्रेस्ट मैम मेरा सर्जरी का बन मैम जाता मेरा है। क्वेश्चन है कि क्योंकि हम हाँ। लोग तो लाइक वो लोग हमसे कहते हैं कि आप लोग ये अपने वार्ड में करते हैं, तो मैम इसमें हम इस तरह ना बताएं मैनेजमेंट में दैट आई विल इन्वॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, और मैं ये केस मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच में बेसिकली ऑन्कोलॉजी आपने, यूनिट। लेकिन आपको देखो, आप कीमोथेरेपी की बहुत डिटेल नहीं बता रहे, आप रेडियोथेरेपी की डोजेस शेड्यूल वो नहीं बता रहे, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि किस स्टेज में हमने क्या करना है, उसकी सूटेबिलिटी क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द केस। अब जैसे ये यस मैम वो तो 65 केस की है, यस मैम वो तो सही है, लेकिन लाइक आई विल जस्ट टेक दिस केस इन ऑन्कोलॉजिकल यूनिट एंड देन वी विल वो डिस्कस आपने देयर करना है। देखो, ऑन्कोलॉजी को हाँ। रेफर करना बिल्कुल बनता है, वो करना भी होता है, हमने ये वो करते हैं। अब रेडिकल पल्पेक्टमी हम तो नहीं कर रहे होते, लेकिन ये है कि बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट, मरीज सबसे पहले आप ही के पास आएगा, बायोप्सी आप ही ने लेनी है, उसके बाद बायोप्सी पे अगर लाइकन स्क्लेरोसिस या प्लेनस आ गया, ट्रीटमेंट भी आप ही ने करनी है, उसके बाद उसका फॉलोअप या मॉनिटरिंग भी आप ही ने करनी है, और उसके बाद अगर आपने अलबत्ता लिम्फ नोड बायोप्सी आप नहीं लोगे, उसके बाद जो उसका आ जाता है स्टेज 1A या 1B या बियॉन्ड उसके, तो फिर ट्रीटमेंट ऑन्कोलॉजिकल सर्जन करेगा, या फिर रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी भी वही ऑन्कोलॉजिस्ट करेंगे, वो हम नहीं करेंगे। लेकिन हमें मैम वो तो कुछ आप प्रिंसिपल, बताएं मैम कि ड्यूरिंग दैट सर्जरी आई विल लाइक स्क्रब विद द ऑन्कोलॉजिकल सर्जन और फिर वी विल जस्ट डू द वेल्वेक्टमी, ऐसे ना बताएं, यानी हम कहे नहीं, कि उसमें वी आई बताने विल की डू जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ ओके आपने मैम ये बताना है कि इसमें अब इसका जो प्लान ऑफ मैनेजमेंट है वो रेडिकल बल्वेक्टमी है, ठीक है, विद स्किन ग्राफ्टिंग है, फिर सेपरेट लीजन से, सेपरेट इंसिजन से आपने लिम्फ नोड डिसेक्शन करनी है, इस तरह से करके फिर आप बताओगे। जहां आपका रोल नहीं है, और जो रोल होता भी नहीं है, अनलेस यू प्लान टू बिकम गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, तो आपका रोल वहां पे बनता है, तब आप जरूर ये बता सकते हो। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अ नॉर्मल एक है गायनेकोलॉजिस्ट का जो आपका डिग्री प्रोग्राम है, उसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि अब ये जो है इन लेज ऑन विद ऑन्कोलॉजिकल सर्जन की इसका सारी लिम्फ नोड डिसेक्शन है या इसकी रेडिकल बल्वेक्टमी है, अब इसका प्लान ऑफ मैनेजमेंट ये होगा। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड पेशेंट को आपने बताना होता है, और उसका सूटेबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको पता होना चाहिए।
चाहे आप लिम्फ नोड डिसेक्शन खुद ना करें, चाहे आप रेडिकल वल्वेक्टमी खुद ना करें, अगरचे कुछ लोग करते भी हैं, तो वहां पे तो स्किप किया जा सकता है, लेकिन जो चीजें आपको बीइंग प्राइमरी गायनेकोलॉजिस्ट पता होनी चाहिए उस पे स्किप नहीं हो सकता। मैम इसमें जो कम्युनिकेशन विद कोलीग आता है ना हमारा, एक जो इसमें देते हैं, उसमें एक हमारा जो कोलीग्स के साथ वो एनेस्थेटिस्ट होगा, हमारे हाँ। ओटी टीम होगी, हमारे कंसल्टेंट होंगे, हमारा हाँ। जो ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, और साथ में हाँ। स्किन ग्राफ्टिंग के लिए हमारा प्लास्टिक सर्जन, जो कॉस्मेटिक सर्जन, हाँ ठीक है, उनका हम ठीक नाम है, ले लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज का अपना फिर सेशन एंड करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह। ये असल में मेलिग्नेंसी मैंने ये सोचा था वल्वो विजाइनल शायद एक ही उसमें हो जाए, डिस्कस हो जाए, लेकिन ये वाकई एक सेशन में खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। मैम क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी इन दो को ही रखें, मैम सीए विजाइना की भी न्यू फिगो है, विजाइना की अलग है न्यू फिगो मैम। हाँ और जी, हाँ जी, वो उसकी भी 2021 की स्टेजिंग तो है, ये इसकी वल्वा की तो है 2001 की, 2021 पास कर दे, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज ही नहीं आती जा रही है मैम। पीटीएच की भी नहीं रखते हैं, ब्रेस्ट ना असल में यही बात है ना कि जो आज से जो 10 साल पहले या 20 साल पहले जो हमने किया, अब तो उसका कहीं वजूद ही नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जैसे स्टेजिंग चेंज हो गई, अब स्टेजिंग भी चेंज होती है इसलिए कि उसमें आपने एक और एडिशनल चीज डाल दी जो उसके प्रोग्नोसिस को डिटरमिन करेगी, जो उसकी मैनेजमेंट को डिटरमिन करेगी। अब अगर स्टेज 1A में लिम्फ नोड डिसेक्शन की हमें अमूमन जरूरत नहीं पड़ती, तो वो हमने उसमें डाली है नई चीज, तो हमने उसकी एक लाइन बना दी ना कि इसमें लिम्फेटिनेक्टमी ना करे। 1B पे आपने जाना है उस पे, ठीक है ना। 1B की फिर मैनेजमेंट फर्क होगी, 2 की, 3 की, 4 की मैनेजमेंट फर्क होगी, और 4 में तो अमूमन पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही होती है, उसमें उसको नहीं कर सकते। हाँ जी मैम, ये ऑन्कोलॉजी सेशन कंप्लीट हो तो आप एक अनश्योर ऑफ डेट पे भी क्लास ले लें प्लीज। चलें ठीक है, ये पहले खत्म हो जाए ना, क्योंकि इसके एक ऑन्कोलॉजी वाले सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएं, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं। ऑन्कोलॉजी वाले टॉपिक्स जो हैं वो काफी डिफिकल्ट टॉपिक्स समझे जाते हैं, तो इस वजह से इनके बारे में सारी क्वेरीज को क्लियर करना बड़ा जरूरी होता है। मैम नेक्स्ट टाइम भी सीए वल्वो और सीए विजाइना पे ही रहते हैं, वो हाँ, सीए इसी पे अलग रहते से करते हैं। वो इसलिए कि ये काफी लंबी डिस्कशन होती है। मैम पहले ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद। जी जी बिल्कुल, ये पहले हम वल्वा को कंप्लीट करेंगे, फिर विजाइना को टच करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। यस मैम, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू थैंक यू मैडम। ओके।